So friends, today we'll be taking up the next lecture of our modern history schedule, modern history module. ओके तो थोड़ा सम अप करते हुए हम ये बात करते हैं कि कल एक्चुअली जब हम कल या फिर लास्ट सेशन में जब हम बात कर रहे थे तो वी वर लुकिंग इनटू व्हाट रॉबर्ट क्लाइव डिड while he was appointed as governor of Bengal after the battle of Buxar. So he came up with a very fast system, a very difficult system which was known as dual system, जिसमें कि the responsibility of administration was kept to the Indians, that is in that case Nawab. He deputed a couple of deputy Nawabs there, as you all know, Sitab Rai for Bihar and Muhammad Raza Khan for deputy Nawab of the Bengal province, and Muhammad Raza Khan was appointed as the deputy Nazim of the whole region. लेकिन उस सिस्टम में काफी फ्लॉज आप लोगों ने देखे थे, किस तरीके से उसमें चूंकि अकाउंटेबिलिटी की कमी थी, दैट्स व्हाई दैट्स डुअल सिस्टम फेल्ड एंड दैट even the company realized as well as the British Parliament realized that dual system is not right for India at all, for the region at all, and which will be creating revenue loss for the company as well as create poverty in the region also. So after Robert Clive, the next governor who was appointed in Bengal was Warren Hastings. Now he was not only appointed as the governor, but even after Regulating Act of India, which came in 1773, he was appointed as the Governor General of India, and he was the first Governor General. So there were a couple of things which he faced while he was appointed as Governor of Bengal. As you can see here, that company decided to overthrow the mask of Mughal sovereignty. See, अभी तक जैसे कि डुअल सिस्टम में आप लोग ये चीज देख रहे थे that the company ensured that they don't portray themselves as the real power, as the real sovereign. That's why they continued with whoever was the Indian prince there or the Indian Nawab there, as well as they recognized the Mughal emperor also. They reinstated after Battle of Buxar. As you all know, after Battle of Buxar, all the three northern forces, that is the Nawab of Bengal, Mir Qasim, the Nawab of Awadh, which was Sirajud-Dawla, as well as Shah Alam II, the Mughal emperor, all of them were defeated in the Battle of Buxar. But despite that, the company didn't assume or subsume the whole Bengal, Awadh, and the Delhi region. And the reason behind that was that they didn't want to come into the direct conflict with the Indian princes, that is Marathas, as well as the Afghan threats, and they also didn't want to portray themselves as the conquerors or the sovereign of India in front of the other European powers, that is French, Netherlands or Danes. So that's why they continued with this particular system. But this system was quite flawed. So company decided कि why not throw out or overthrow this mask. ये जो मुखौटा है sovereignty का, ये जो मुखौटा है जो मुगल एम्परर को दे रखा है, क्यों इसके साथ कंटिन्यू किया जाए, एंड व्हाई शुडंट वी एज्यूम द होल थिंग ऑन आवर ओन. तो ये कुछ चीजें कंपनी ने डिसाइड की. उसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, उसके लिए कुछ टास्क कट आउट थे. देयर वर सम टास्क व्हिच आर कट आउट फॉर वॉरेन हेस्टिंग्स व्हेन ही केम टू इंडिया एज गवर्नर ऑफ बंगाल, व्हिच वर बेसिकली अ वर्केबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. नाउ बिकॉज ऑफ द इल इफेक्ट्स ऑफ द डुअल सिस्टम, द एडमिनिस्ट्रेशन रप्चर्ड. Administration failed at all the lengths. As you all know, I told you कि dacoits as well as Sannyasi rebels were giving no respect to the law and order of the land. So ये जो इस तरह की अराजकता फैली हुई थी उस रीजन में, उस कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी. इसके अलावा the second thing which Robert Clive was tasked upon was rehabilitating the finances. अब जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया था, ग्रेनरी कहा जाता था बंगाल को, बंगाल वाज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ इंडिया. तो ये भी चीज जो थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, बिकॉज ऑफ विच ट्रेड वाज आल्सो अफेक्टेड. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स रेवेन्यू कलेक्शन ड्रॉप्ड despite of all their efforts. And then in 1770s famine also happened in Bengal. So because of all these things,
there were few tasks which were cut out for Warren Hastings to take care of, and then develop the commerce. जो कॉमर्स है, वाणिज्य है उस क्षेत्र का, इसके बारे में भी वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, he had to take care of all those things and he had to improve on all these fronts. He had his task cut out for all these particular areas. So that's how Warren Hastings approached the governorship of Bengal. Okay, now moving ahead, as we can see, the first administrative reform which Warren Hastings brought along with the company's decision was the end of dual system. Okay, dual system को खत्म कर दिया गया क्योंकि वो एक बहुत ही बेकार सिस्टम था, उसमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होती थी किसी भी तरीके से. जो भी डेप्टी दीवान अपॉइंट किए गए थे एंड द अदर ऑफिसर्स हु वर अपॉइंटेड, दे हैड नो स्टेक्स इन द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ दैट रीजन, as well as the administrative system of those regions were again not ensured by the people who had real power. So that's why this particular dual system was abolished. That was the first thing which was done under the governorship of Warren Hastings. Then President and Council. Now, as I told you in the last slide itself, that the mask of Mughal sovereignty was snatched away. So under this particular thing happened is that, as you all know, after the Battle of Buxar, in all the agreements which happened in Allahabad, the first agreement under the second agreement which was done with Shah Alam II, the Mughal emperor, the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha were given to the company itself, which company used to run using appointing their deputy diwans in Bengal as well as Bihar. So these two diwans were dropped. They were no more called deputy diwans. These posts were abolished, and the company, under a president and council, a council was made, and the president of the council and along with the council started taking up the diwani functions of the region. Next, board of revenue formed. Now what happened in the collection of revenue? As you all know, under diwani, revenue collection was done, and it was done through a bidding system which still continued. But the person who was going to collect the revenue from that particular region, from that particular district, those things were appointed under the board of revenue, who were called collectors. जो प्रेजेंट डे आपको डीएम दिखते हैं सिटी के, डिस्ट्रिक्ट के, which you all aspire to be one day, because most of you would be interested in becoming IAS officer, though every service is very important, but still. So these were the collectors. तो उसका जो इनिशियल फॉर्म है, जो जहां से इस पर्टिकुलर पोस्ट की उत्पत्ति हुई है, वो जो था, वो पोस्ट जो है वो कलेक्टर्स है, जो कि पहली बार अपॉइंट हुए बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हुए, और यहाँ पे इनका काम था रेवेन्यू का कलेक्शन करना. अब रेवेन्यू का कलेक्शन ये करते थे, बट देयर वाज अ मिडिलमैन जो थे वो लोग थे जो कि रेवेन्यू फार्मर से, रेवेन्यू कलेक्टर्स थे जो कि फार्मर से लेते थे, और फिर उसके बाद एक पोर्शन अपने पास रखने के बाद वो जो रेवेन्यू है वो कलेक्टर्स के पास जमा कर देते थे, और कलेक्टर ये जो पैसे हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाके जमा कर देते थे. तो इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया, और कलेक्टर्स एक पोस्ट बनाई गई जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पूरा रेवेन्यू कलेक्शन का काम है वो उसको एडमिनिस्टर करने लग गया. इसके अलावा ट्रेजरी जो है वो मुर्शिदाबाद से बंगाल मूव कर दी गई, कलकत्ता मूव कर दी गई. अब आप यहां पे क्या देखेंगे कि होता क्या था कि जो लास्ट, एज यू ऑल नो, द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल, मतलब ऑफ कोर्स नवाब अभी भी थे, लेकिन जो लास्ट ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर, बिफोर द बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1760. ओके, तो he moved from Munger he moved his capital to मुर्शिदाबाद. ओके, नाउ मुर्शिदाबाद में जो ट्रेजरी जो थी, जो जितने भी पैसे थे वो मुर्शिदाबाद में आके इकट्ठा होते थे, बिकॉज अब अभी भी कहीं ना कहीं जो नवाब था उसकी ही सॉवरेनिटी के अंडर ये काम हो रहा था. बेसिकली मुगल सॉवरेनिटी के अंडर हो रहा था, पर मुगल सॉवरेनिटी ने वहां पे नवाब अपॉइंट करा हुआ था बंगाल में, और उसने मुर्शिदाबाद को ट्रेजरी बनाया हुआ था. तो इस ट्रेजरी जो था, ये जो ऑफिस था, इसको मूव करके कलकत्ता ले जाया गया. ठीक है, अब इस मूव के पीछे क्या रीजन हो सकता है, अगर आप देखें तो ये देखेंगे कि कलकत्ता में, एज यू ऑल नो, कलकत्ता जो था वो तो पूरा एस्टैब्लिश जो था, फोर्ट विलियम जो एस्टैब्लिश जो था वो इंग्लिश एस्टैब्लिशमेंट था, वो कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट था. तो यहां पे आप कहीं ना कहीं यू विल फाइंड दैट देयर इज सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन द न्यू गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स.
जितना भी मेन एस्टेब्लिशमेंट के पास में ट्रेजरी रहेगा, उतना ट्रेजरी के साथ किस तरीके से ट्रेजरी को इंश्योर करना है एंड हाउ द रेवेन्यू शुड बी कलेक्टेड एंड हाउ मच इट शुड बी देयर, इसके ऊपर जो कंपनी का कंट्रोल है वो और बढ़ जाएगा। और चूंकि कलकत्ता में ही गवर्नर बैठ रहा था, वॉरेन हेस्टिंग्स बैठ रहा था, तो अपनी विजिलेंस बढ़ाने के लिए, अपना पावर बढ़ाने के लिए, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को और कंसंट्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं मुर्शिदाबाद से ट्रेजरी जो है वो शिफ्ट कर दी गई टू कलकत्ता इटसेल्फ। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आए। उसके अलावा मुन्नी बेगम, नाउ हु वाज मुन्नी बेगम? मुन्नी बेगम मीर जाफर की विधवा थी, ठीक है, और शी वाज एट वन टाइम द बेगम ऑफ बंगाल। तो मुन्नी बेगम को कुछ ऑफ कोर्स कुछ गिफ्ट, देखिए गिफ्ट्स यहाँ पे हर केस में आपको मिलेंगे कि गिफ्ट्स जो मिल रहे थे गवर्नर को, वो जैसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के केस में भी आपने कई बार देखा और उनको इस बात के लिए चार्ज भी किया गया। he was taken up to task in England itself for taking bribes and all. So against some bribe, Munni Begum was appointed as the guardian of a minor Nawab, Mubarak-ud-Dawla. Okay, as you see in earlier case, another son of Mir Zafar, Nazm-ud-Dawla, was made the Nawab of Bengal. In this case, Mubarak-ud-Dawla was appointed, but he was minor. So Munni Begum was appointed as the guardian of बंगाल, ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। अब इसमें भी ब्रिटिशर्स का ही हाथ था, इसमें भी कॉलोनी का हाथ था, क्योंकि मुन्नी बेगम पे कहीं ना कहीं जो कंपनी थी वहां पे, जो गवर्नर था बंगाल का, he had a better control, he had a better understanding with her, so that's why he appointed Munni Begum as the guardian of the minor Nawab. And the last one, Allahabad and Kora sold to Nawab of Awadh in 50 lakh rupees. अब देखिए ये अलाहाबाद एंड कोरा का जो इशू है, ये मैंने पिछली क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जो कुछ एग्रीमेंट्स पास हुए थे, उनमें से एक एग्रीमेंट में क्या किया गया था कि जो नवाब ऑफ अवध है उससे अलाहाबाद और कोरा लेकर ब्रिटिश कंपनी ने, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेकर, जो रॉबर्ट क्लाइव ने एग्रीमेंट किया था, उसके अंतर्गत इन दोनों को लेकर शाह आलम टू को दे दिया था। और शाह आलम टू को दे इनवाइटेड एंड दे आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द चेयर ऑफ अलाहाबाद एंड टू एडमिनिस्टर अलाहाबाद एंड कोरा। तो ये दो जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, ये ब्रिटिशर्स ने इंश्योर किया था कि ये मुगल एम्परर के पास रहे। लेकिन इस केस में आप ये देखेंगे कि अलाहाबाद एंड कोरा को अंडर अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाज गिवन और वाज सोल्ड टू द नवाब ऑफ अवध, ओके, शुजाउद्दौला, टेकिंग अप 50 लाख रुपीस। अब देखिए इसके पीछे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें मराठा इन्फ्लुएंस भी है, इसमें किस तरीके से मुगल एम्परर जो he took up the protection of the Maratha Mahadaji Scindia and all these princes at that time, but we'll be taking it up in next slides. But right now you just try to understand कि under administrative reforms of Robert Clive, these two districts, Allahabad and Kora, were given to Nawab of Awadh, okay, taking up 50 lakh rupees, okay. Now moving ahead to the next slide, what we see, now we already summed up the administrative reforms. Now we'll talk about the revenue reforms. Okay, what were the revenue reforms which were taken up by Warren Hastings? Okay, the first one was before coming up the various revenue reforms which he took up, try to understand कि इंडिया में during Great Mughals, खास अकबर के टाइम पे, अकबर along with टोडरमल एक बहुत ही डिटेल्ड रेवेन्यू सेटलमेंट और रेवेन्यू सिस्टम फॉर्म किया था, जिसे धसाला भी बोलते थे। आप ये चीज मिडिएवल में वील बी टेकिंग अप व्हेन वील टेक मिडिएवल क्लासेस, मिडिएवल इंडियाज क्लासेस। एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर वाज अ वेरी गुड एंड वेरी डिटेल्ड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम वाज ऑलरेडी प्रेजेंट ड्यूरिंग द ग्रेट मुगल्स। कहने का मतलब अकबर के टाइम पे, उसके फर्दर जो भी मुगल एम्परर्स रहे थे, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब एंड ऑल दीज, when they were strong enough to get a particular system implemented in their area of influence, at that time they had a very detailed revenue settlement system, जो कि eventually during the time of later Mughals, जिस टाइम पर कि मुगल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन काफी वीक हो गया था, उस टाइम पे it was really very hard to ensure the revenue settlement established after Akbar. So that's why this was a very ill situation for the revenue collectors which came after later Mughals. In this case, when you see that when Britishers arrived here, when company arrived here and took up the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha, they were unable to find a established revenue settlement system.
ओके। तो इसके बाद हेस्टिंग्स ने, चूंकि देखिए आप इस बात को समझिए कि कोई अगर इंडियन राजा ही आके बैठ जाता ऑन द क्राउन ऑफ दिल्ली या फिर इस तरह के बड़े रीजन को, इफ दे वुड हैव स्टार्टेड टू एडमिनिस्टर दिस रीजन or to collect revenue from these regions, they would have at least be able to understand the social economical milieu of that particular region. But in this case, because Britishers had no idea about how things were happening earlier, and at that time we can also say that they were not even interested. They just wanted to increase their revenue. अपने revenue को बस बढ़ाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। इसलिए revenue किस तरीके से define होगा, जमीनें किस तरीके से नापी जाएंगी और किस तरीके से एक रेवेन्यू अमाउंट पे दे वुड हैव कंक्लूडेड, इसके बारे में दे वर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। तो इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ये इनको एक्सपेरिमेंट ही बोलेंगे, अनक्वालिफाइड एक्सपेरिमेंट्स थे। मतलब इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड स्टडी नहीं थी, जैसा कि पहले हुआ था ड्यूरिंग अकबर, टोडरमल ने जैसे किया था। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो था 5 ईयर सेटलमेंट। कहने का मतलब ये, इसे क्वेनियल सेटलमेंट, 5 साल की अवधि को क्वेनियल बोलते हैं। तो 5 ईयर सेटलमेंट किया जिसके अंदर यह किया कि 5 साल के लिए इतना रेवेन्यू होना चाहिए। मैं आज बना दे रहा हूं कि 5 साल के अंदर ये एक पर्टिकुलर खेत है, ठीक है, ये 10 बीघा खेत है या 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत इस रीजन का, उससे इतना रेवेन्यू आना चाहिए। ये 5 साल का सेटलमेंट कर दिया, ठीक है। आगे चल के हम परमानेंट सेटलमेंट पढ़ेंगे। देखिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप ये समझिए कि परमानेंट सेटलमेंट जो कि कॉर्नवालिस के टाइम पे आया इन 1793, वो कैसे इवॉल्व हुआ, हाउ ब्रिटिशर्स, हाउ द कंपनी केम अपॉन द परमानेंट सेटलमेंट, ये जानने के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट जानना बहुत जरूरी है। तो 5 साल का सेटलमेंट कर दिया, और जो हाईएस्ट बिडर था, देखिए ये प्रॉब्लम तो पहले भी आ रही थी कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वाली, कि जो भी सबसे ज्यादा बिड करता था कि मैं अंग्रेजों को सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकाल के इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से दूंगा, उसी को वो लोग रेवेन्यू कलेक्शन का ठेका दे देते थे। ये बेसिकली ठेकेदारी ही है। तो बिडिंग होती थी इसकी। अब यहां पे एक समझने की बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रॉबर्ट क्लाइव भी, जो कॉर्नवालिस से पहले जितने भी गवर्नर रहे थे, और वॉरेन हेस्टिंग्स तो गवर्नर जनरल भी बने, तो इन लोगों के साथ बहुत बड़ा इशू था कि ये इंडिया का किस तरीके से जमीनों का नाप होता है, किस तरीके से जमीन की उगाही, किस जगह की जमीन जो है वो ज्यादा पैदावार करती है, किस जगह की जमीन कम पैदावार करती है, इन सब पचड़ों में ये फंसना ही नहीं चाहते थे। तो इस कारण से उन्होंने चूंकि स्टडी नहीं किया, तो वो जो जमींदार और उस जमीन में जो लोग काम करते हैं, उस जमीन में जो लोग खेती करते हैं, खेतीहर किसान जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनके बीच के रिलेशन को ब्रिटिशर्स समझ ही नहीं पाए। और चूंकि ये समझ नहीं पाए, तो उन्होंने ये समझा कि जमींदारों के पास दे हैड नो प्रॉपर्टी राइट्स। कहने का मतलब ये इनका अपना क्षेत्र नहीं है, वो केवल रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते हैं। जबकि आप अगर रियल सेंस में देखें, अगर आप पढ़े भी और जानते होंगे ये बात, कि एक जमींदार जो होता है, उसकी जो जमीन होती है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, और उस पे जो फार्मर्स जो है वो काम करते हैं, उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वो रिलेशनशिप कई जगह पे बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव भी होता है, कई जगह पे कॉर्डियल भी होता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट जमींदार। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, इसको एक्नॉलेज ही नहीं किया अंग्रेजों ने। उन्होंने ये माना कि एक जमींदार जो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड का है, जरूरी नहीं है कि वही उस जमीन को समझे और उस जमीन से कितना रेवेन्यू आना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसके बारे में ओपिनियन रखे और उस ओपिनियन कोई वैल्यू हो। इस बात को अंग्रेजों ने नहीं माना, और इसी कारण से उन्होंने जमींदारों को डिमोरलाइज भी किया। एज यू कैन सी हियर दैट जमींदार्स वर डिस्करेज्ड in the first 5 year settlement, in the very first experiment which Warren Hastings did, in that 5 year settlement, traditional zamindars were discouraged, उनको discourage किया गया, और बल्कि जो नए bidders थे, जो प्राइवेट एंटिटीज थी, ठीक है, उन जैसे जो शहरी लोग हो गए या जो पैसे वाले लोग हो गए, इवन इसमें तो कई बार क्या होता था कि जो बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनके अंडर में जो लोग काम करते थे, उनके वो भी बिडिंग करते थे। बेसिकली जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये एक फेस बना के एक इंसान का, और खुद भी वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। तो इससे कारण जो जमींदार थे उनको डिस्करेज किया गया इन द 5 year सेटलमेंट थिंग। लेटर ऑन कलेक्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय इंडियन दीवान्स। ओके, अब यहां पे आप देखो हुआ क्या कि एज यू कैन सी, आई टोल्ड यू इन द अर्लियर स्लाइड इटसेल्फ, कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कलेक्टर्स अपॉइंट किए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। अब रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम जो है वो मिडिलमैन कर रहा है, जो कि हाईएस्ट बिडर को मिल जाएगा,
जिसमें कि जमींदारों को डिस्करेज किया गया। इसके बाद कुछ इंग्लिश कलेक्टर्स, ठीक है, यहां पे जब मैं कलेक्टर लिखूंगा यहां पे तो आप ये समझिएगा कि कलेक्टर्स इस टाइम पे जो थे वो पूरी तरीके से इंग्लिश थे, दे वर नॉट इंडियन एट ऑल। इंडियन कलेक्टर्स अपॉइंट कतई नहीं हुए उस टाइम पे और इंग्लिश कलेक्टर्स को अपॉइंट किया गया। तो इंग्लिश कलेक्टर्स जो थे वो काफी ज्यादा, जैसा कि आप उस टाइम जान ही रहे हैं कि उस टाइम पे सेल्फ गोल्स अचीव करना जो था वो इंग्लिश ऑफिसर्स का मेन प्रायोरिटी हो चुका था। तो चूंकि वो मेन प्रायोरिटी हो चुका था तो व्हाट वॉरेन हेस्टिंग्स ऑब्जर्व इज दैट कि इन प्लेस ऑफ कलेक्टर्स हु आर गोइंग टू बी सर्विंग देमसेल्व्स ओनली, व्हाई शुडंट वी अपॉइंट इंडियन दीवान्स? हम क्यों नहीं इंडियन दीवान्स को यूज करें जो कि पहले वाले सिस्टम में हुआ करता था। ठीक है, पुराने सिस्टम में मोहम्मद रजा खान को डेप्यूटी दीवान बनाया गया था ऑफ बंगाल प्रोविंस। ठीक है, राजा सिताब रॉय को डेप्यूटी दीवान बनाया गया था ऑफ द बिहार प्रोविंस। तो इसी मॉडल पे वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो वापस लौट गए क्योंकि उन्होंने कलेक्टर्स के बीच में करप्शन को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर चीज की गई। उसके अलावा 6 प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गई। ठीक है, अब ये जितने भी इंडियन दीवान थे इनको सुपरवाइज करने के लिए प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गई। ओके, अब ये प्रोविंशियल काउंसिल्स क्या करती थी? ये प्रोविंशियल काउंसिल्स बेसिकली सुपरविजन का काम करती थी इंडियन दीवान्स को। ठीक है, और जब ये इनको सुपरवाइज करती थी तो इसके थ्रू एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडियन दीवान का काम भी जो था वो एक अच्छे विजिलेंस के अंतर्गत हो रहा था, उसके ऊपर ध्यान रहता था। और अगर कोई इंडियन दीवान जो था वो आउट ऑफ द वे जाकर वो रेवेन्यू अपने पास रखे, कहने का मतलब करप्शन करे, किसी भी तरीके का एम्बेजलमेंट करे फंड्स का, तो ये इंश्योर किया जाता था कि ऐसा इंडियन दीवान्स ना कर पाए। तो प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाए गए। और इसके अलावा जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी और कहीं ना कहीं इसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट ने भी उनकी काफी हेल्प की। तो ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के अंतर्गत जो सेंट्रलाइजेशन था इन 6 प्रोविंशियल काउंसिल्स का, वो कमिटी ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया जो कि कलकत्ता में थी। ओके, ये कमिटी ऑफ रेवेन्यू का काम ये था कि ये सुपरवाइज करेगी इन काउंसिल्स को। ओके, कहने का मतलब दीवान से, उसके बाद 6 प्रोविंसेस है, उसके बाद कमिटी ऑफ रेवेन्यू है जो कलकत्ता में बैठती है। इस तरीके से एक हायरार्की बना दी गई जिससे कि किसी भी तरीके का करप्शन या एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स ना हो और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो कंपनी को मिल पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, इस पर्टिकुलर जो 5 ईयर सेटलमेंट सिस्टम था, इसमें जो लैंड है वो अगेन ओवर एसेस हो गया और जो रेंट का डिमांड था बहुत ही हाईली सॉरी, आई मस्ट रब इट ऑफ फर्स्ट। ओके, वेट। नाउ इसके अंदर क्या हुआ कि इसमें लैंड ओवर एसेस होने लग गया एंड जो रेंट डिमांड था वो हाईली फिक्स कर दिया। कहने का मतलब ये कि क्या हुआ, जैसे मैंने को बताया था कि स्टडी तो किया गया था नहीं और पुराना जो मुगल सिस्टम चला आ रहा था उसको बर्बाद हो गया था, जो ग्रेट मुगल्स के टाइम चला आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू आउट ऑफ द लैंड, उन्होंने लैंड को ओवर एसेस कर दिया। कहने का मतलब जैसे एक लैंड के थ्रू अगर 10 यूनिट या 10 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हो पा रहा है, होने के चांस है, जिसके थ्रू की फार्मर को भी उतना इशू ना है, फार्मर भी एक्सप्लॉइट ना हो, अच्छा मतलब, और ये भी ना हो कि जरूरत से ज्यादा जो फसल है वो उगा दी जाए एक ऐसे पीस ऑफ लैंड से विच कांट बियर सो मच क्रॉप्स ऑन इट्स ओन फर्टिलिटी एंड सॉइल। तो ये चीज ना देखते हुए 10 रुपए की जगह 15 रुपए दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग। अब इससे कहीं ना कहीं अनड्यू प्रेशर आया ऑन द लैंड इटसेल्फ एज वेल एज द फार्मर्स और रेंट बहुत ही हाई बढ़ा दिए गए, जैसा आप देख ही रहे हो, जो स्टेट का डिमांड था उसे बढ़ा दिया गया। तो इस कारण से ये जो 5 ईयर सेटलमेंट है ये तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बर्बाद हो गया। सॉरी, इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और 5 ईयर सेटलमेंट जो है उसको इवेंचुअली वापस लेना पड़ा वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विच वॉरेन हेस्टिंग्स डिड वाज टू रिवर्ट टू एनुअल सेटलमेंट। ठीक है ना, अब इससे पहले भी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे एनुअल सेटलमेंट हुआ करता था। Every year it used to be decided that how much revenue need to be collected from a particular piece of land. So Warren Hastings had to come back to his earlier proposition, okay, and he had to settle with annual settlement. अब annually settle होने लग गया। इसके अलावा कहीं ना कहीं Warren Hastings से ये he observed it that
इट्स बेटर टू इन्वॉल्व इंडियन जमींदार्स, द जमींदार ऑफ दोस, द अर्स्टवाइल जमींदार्स, जिन्होंने की जिनके पूर्वज, जिनके पुरखे उसी लैंड पे जी रहे हैं, उस लैंड को रन कर रहे हैं। इस बात की जो इंपॉर्टेंस है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समझी, और उसने ये भी समझा कि एक पर्टिकुलर लैंड से अगर एक अननोन बंदा जो वहां का है नहीं, अगर वो हाईएस्ट बिड करके और वो उस जगह का रेवेन्यू कलेक्ट करने लग जाएगा, तो इससे बेटर ये है कि क्यों ना वो जमींदारों पे ही प्रेशर क्रिएट करे और बिडिंग प्रोसेस अभी भी ओपन रखे। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो जमींदार वहां का था वो बड़े ही आराम से वहां पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर सकता था। ही हैड टू कम इनटू द बिडिंग प्रोसेस, और ओपन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू उस लैंड का उसको रेवेन्यू कलेक्शन का पावर या राइट मिल सकता था। तो ये चीज देखते हुए जमींदारों को इनकरेज किया गया कि यू शुड गो एंड डू द बिडिंग फॉर योर ओन लैंड and ensure how much revenue you are going to give to the company. And another thing which happened was there कि जो कलेक्टर्स थे उनको दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया। अभी कलेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट है ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि इनको दोबारा से अपॉइंट क्यों किया गया। देखिए क्या दिक्कत है कि क्या है, भारत जो था उस टाइम पे, इंडिया जो था, वहां पर पैसा कमाने के एवेन्यूज बहुत ज्यादा थे। उस टाइम तक सिस्टम स्ट्रक्चर नहीं हो रखा था, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि हर नया गवर्नर जो आ रहा है वो हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और मैक्सिमम रेवेन्यू सेटल हो पा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऑफ केओस था। तो इस केओस का फायदा उठाने के लिए कई सारे इंग्लिश बड़ी बड़ी फैमिलीज जो थी, जो इंग्लैंड में थी, वो अपने बच्चों को यहां पे भेजते थे, वो खुद भी आते थे ताकि वो मैक्सिमम यहां पर से प्रॉफिट्स अर्न करके जा सके। उनका कहीं ना कहीं अनड्यू प्रेशर था ऑन वॉरेन हेस्टिंग्स इटसेल्फ। इनमें से काफी लोग कंपनी में ही काम करते थे, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी थे, ठीक है। तो इस प्रेशर के कारण उसको कलेक्टर्स को दोबारा अपॉइंट करना पड़ेगा, ये जानते हुए कि ये कलेक्टर्स काफी करप्ट है। तो ये जब दोबारा रीअपॉइंटमेंट हुआ तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बस इतना इंश्योर किया कि उनको पावर नहीं दिया, जो कलेक्टर्स हैं उनको पावर नहीं दिया, और कि वो डिसाइड करेंगे, उनके पास डिसाइसिव पावर रहेगा, ये नहीं दिया। और ये काम जो है वो कमिटी ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ही रखा। और साथ ही साथ एक काम और किया कि सेंट्रलाइजेशन को और बढ़ाते हुए जो एक बीच में मिडिल लेवल बनाया गया था ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल्स, जो 6 प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाए गए थे अंडर द 5-year सेटलमेंट प्लान, उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया आगे चलकर, ठीक है। कंप्लीट सुपरविजन अंडर कमिटी, ओके, प्रोविंशियल काउंसिल को अबॉलिश कर दिया और जो कंप्लीट सुपरविजन का काम है वो कमिटी को दे दिया। अब अगेन आप देखेंगे कि ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। एक इंसान को या एक बॉडी को ही ये बोला जा रहा है कि आप पूरा इतना बड़ा रीजन जो है वो सुपरवाइज करें, ओके। तो ये एक पर्टिकुलर चीज हुई ड्यूरिंग द अंडर द रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ओके। इसके अलावा ये 2 रिफॉर्म्स जो है अभी तक जो हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ है, उसके अलावा जो आपका रेवेन्यू रिफॉर्म हुआ है, वो कोई खास फायदेमंद तो नहीं रहा, ठीक है ना। अभी भी क्या हुआ, कुछ भी सेटल नहीं हुआ। और इसके बारे में, रेवेन्यू रिफॉर्म के बारे में, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, इसके बारे में इवन जो ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स भी थे उनका एक ओपिनियन ये था कि जितना भी वो इंडियन रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पहले जानते थे उससे और भी ज्यादा कम जानते हैं। कहने का मतलब ये 2 फेल्ड एक्सपेरिमेंट हुए, 5-year सेटलमेंट प्लान एंड द एनुअल सेटलमेंट प्लान। इसके बावजूद भी किस तरीके से रेवेन्यू इंश्योर किया जाए, फार्मर्स पे प्रेशर ना आए, पॉवर्टी ना बढ़े, और साथ ही साथ रेवेन्यू, मैक्सिमम रेवेन्यू भी एक्सट्रैक्ट हो पाए, इसके बारे में एक ओपिनियन नहीं बन पाया। दे वर अनेबल टू कंक्लूड टू अ पर्टिकुलर सिस्टम which is good not only for themselves as well as we can say a bit satisfactory for Indians as well. तो ये चीज जो है इनको फेल्ड एक्सपेरिमेंट में ही रखा जाएगा जब भी वॉरेन हेस्टिंग्स की बात की जाएगी, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब ये जुडिशियल रिफॉर्म जो है ना, ये कहीं ना कहीं से हम इसका जो क्रेडिट है हम वॉरेन हेस्टिंग्स को दे सकते हैं कि ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स किए गए ये कहीं ना कहीं से पिछले सिस्टम से बेटर था, ठीक है। जबकि उसका रेफरेंस पिछले सिस्टम से ही लिया गया था, जो पुराना मुगल सिस्टम था उससे ही रेफरेंस लिया गया था। बट स्टिल ये जुडिशियल रिफॉर्म्स जो थे वो ऑन द मतलब अगर हम ये देखें कि जो समय का जो तराजू है उस पे वो दे स्टिल आर इन अ बैलेंस स्टेट कहीं ना कहीं से एज कंपेयर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द फॉइल्ड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ओके। तो इसके अंदर क्या किया गया, पहले ये जानना जरूरी है कि उससे पहले, मतलब ये रिफॉर्म्स आने से पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में जुडिशियल एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म की जा रही थी। तो इसके बारे में जब हम देखेंगे तो वील फाइंड दैट कि इस रीजन के अंदर जो जमींदार थे वही सिविल और क्रिमिनल केसेस जो थे उसको वो लोग एडमिनिस्टर करते थे, उसको वो लोग व्हाट वी कैन से दे यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस व्हिच आर हैपनिंग इन देयर ओन रीजन।
तो इसमें जमींदार का ही रोल था, और जमींदार जो था वो कोई डिफाइन तरीके से काम नहीं कर रहा था, और कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन के ऊपर काम चल रहा था। आर्बिट्रेशन का कहने का मतलब ये होता है कि एक तरीके से की संधि, कहने का मतलब आप में और मेरे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कोई सेट रूल्स नहीं है जिसकी कि आप बुक खोलोगे और उसमें से आप कोई धाराएं पढ़ोगे और फिर आप डिसाइड करोगे कि भाई जो ये पर्टिकुलर केस है ये मेरे फेवर में होना चाहिए या आपके फेवर में होना चाहिए। बल्कि क्या होता है ना कि भाईचारे में सॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती थी कि जो भी हाईएस्ट, जो अमीर होगा, जो भी ज्यादा इन्फ्लुएंस रख पाएगा उन जमींदार, वो उस पर्टिकुलर केस को जीत जाता था। तो ये बहुत ही बायस सिस्टम था, और इसके पीछे कोई भी वी कैन से रिफॉर्म सिस्टम नहीं था, एक स्टडीड सिस्टम नहीं था, किसी भी तरीके का इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट नहीं था इस जुडिशियल प्रोसेस में। ओके, उसके अलावा एक इशू और भी था कि जो इंग्लिशमैन थे वो काफी इंटरफेयर कर रहे थे। जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि जब फारूक सियार ने दस्तक अनाउंस किया था 1717 में, जिसमें ड्यूटी फ्री कर दिया था, और जिसके अंतर्गत की उन दस्तक का मिसयूज स्टार्ट हो गया था ड्यूरिंग द कमिंग अप नवाब मीर जाफर, या उसके बाद कासिम को तो काफी झेलना पड़ गया था, और कासिम ने उसमें काफी चेंजेस की भी कोशिश की थी। तो जब ये दस्तक बन गया था, तो जो इंग्लिशमैन थे, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए थे, और जो प्राइवेट ट्रेड में वो इन्वॉल्व हो गए थे, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो गो मस्टास, जो कि उनके अपने एजेंट थे, तो उनके थ्रू वो क्या करते थे कि वो शहर शहर घूमते थे, और वहां पे किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न किए जाए, ट्रेड में प्रॉफिट्स अर्न किए जाए, ये सब देखा करते थे। और साथ ही साथ कभी कभी आउट ऑफ इंटरेस्ट भी, और कभी कभी अपने मुनाफे के लिए वो लोग वहां पे, जो जमींदार बैठ के कोई भी सिविल केसेस को ट्राई कर रहे होते थे, ट्रायल वाज हैपनिंग, और कोई क्रिमिनल केस को ट्रायल दे रहे होते थे, तो उसमें दे यूज्ड टू गो एंड बिकम द जज ऑफ इट, बिकॉज इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद वैसे भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन के जो लोग थे वो ये जान ही रहे थे कि जो अगले अब के हमारे आका हैं, जो राजा हैं, वो ये गोरे हैं। तो कई सारे जो गोरे हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर केस चल रहा होता था, तो जाके वो अपनी मर्जी से, अपने फायदे को देखते हुए उस पर्टिकुलर केस को ट्राई करने लग जाते थे। तो इसके कारण क्या हुआ, देयर वाज एन एस्टैब्लिश्ड नेटिव सिस्टम। अब वो जितना अच्छा, कितना अच्छा है और कितना खराब है, ये तो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन स्टिल देयर वाज अ सिस्टम। और उसमें क्या हुआ, जो इंग्लिशमैन है, जो गोरे हैं, वो उसमें सेंध लगाने लग गए, उसके अंदर इन्फ्लुएंस करने लग गए। तो बेसिकली क्या हुआ कि खिचड़ी बन गई, ठीक है ना। और जुडिशियल प्रोसेस, जो जुडिस्प्रूडेंस जो होता है, वो कहीं से भी फॉलो नहीं हो पा रहा था। ओके, 1765 के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की ये कंपनी को दे दी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत, तो उस टाइम पे जो सिविल जुरिडिक्शन था, ठीक है, सिविल जुरिडिक्शन जो था वो डेप्यूटी दीवान के पास आ गया था, ठीक है ना। डेप्यूटी दीवान, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये मोहम्मद रजा खान और राजा शिताब रॉय, तो इन लोगों को दे दिया गया था, और यही कंडक्ट कर रहे थे सिविल। अब सिविल के अंदर आता क्या है, ये तो खैर आप लोगों से कुछ छिपा है नहीं, चाहे मैरिज के इश्यूज हो, चाहे लैंड के इश्यूज हो, ठीक है ना, इस तरह के जो भी इश्यूज रहते हैं जो कि नॉन क्रिमिनल है, जैसे कि जब किसी पर्टिकुलर केस में किसी ने किसी को मारा नहीं है, किसी का हाथ पांव नहीं तोड़ा है, किसी को धमकी नहीं दे रहा है जान से मारने की, तो ये सब केसेस छोड़ के जितने भी प्रॉपर्टी, जमीन जाल, शादी ब्याह, आपस के जितने भी बंटवारे के जितने भी इश्यूज थे, वो सिविल केसेस में आते थे, और ये डेप्यूटी दीवान के अंडर में ही आ गया था आफ्टर 1765, ठीक है। और तो इसको ये देखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, जो पुराना मुगल सिस्टम है, पुराना जो मुगल सिस्टम है, उससे, मुगल मॉडल से रेफरेंस ले लिया, ठीक है ना। मुगल मॉडल से रेफरेंस ले लिया कि किस तरीके से मुगल टाइम में, ड्यूरिंग ग्रेट मुगल टाइम्स, जुरिस्डिक्शन या फिर जो जुडिशरी है, या फिर जस्टिस के जो प्रोसेसेस हैं, वो किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, इससे रेफरेंस ले लिया। ओके, और 1772 में, इन 1772 दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत को सेटअप कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है, आज भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। आज भी आप देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट्स होते हैं। एक कोर्ट जो होता है वो सिविल केसेस को ट्राई करता है, और दूसरा कोर्ट जो होता है वो क्रिमिनल केसेस को ट्राई करता है। तो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया गया, सॉरी, आई डोंट थिंक इट विल बी विजिबल टू यू। ओके, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया गया कि 2 तरीके के कोर्ट्स बना दिए गए, ठीक है ना। एक बना दिया गया आपका दीवानी अदालत, और एक बना दिया गया एक फौजदारी अदालत, ठीक है ना।
अब दीवानी अदालत का काम था सिविल केसेस को ट्राई करना, और फौजदारी अदालत का काम था क्रिमिनल केसेस को ट्राई करना, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि, और ये 1772 में हुआ था, ईयर याद रखिएगा, ठीक है ना, मतलब नॉट उसको मगअप करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ये ईयर जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से आगे चलकर इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। ओके ओके, तो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे ये आगे चलकर दे वर एबल टू लुक इनटू दैट। ओके, नाउ जो दीवानी अदालत थी, जो डिस्ट्रिक्ट में दीवानी अदालत बनी थी, इसके बारे में अगर देखेंगे तो इसका जो प्रेसिडेंस था, इसको जो हेड करता था वो कलेक्टर था वहां का। अब आपको तो ये पहले बता ही चुका हूं कि किस तरीके से पहले कलेक्टर अपॉइंट किया गया था बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू। ओके, तो अब रेवेन्यू कलेक्शन का काम तो बेसिकली एक दीवानी का ही काम है। तो जब दीवानी का काम जो था वो कलेक्टर हेड कर रहा था, तो वही इस अदालत को भी हेड कर रहा था कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है सिविल केसेस में, दीवानी केसेस में, तो वो कलेक्टर ही देखेगा। इसके अलावा जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि रिलीजियस लॉज इसमें फॉलो होते थे। कहने का मतलब ये कि जो हिंदूज थे उनके जो मैरिज के केसेस हो गए या बंटवारे की चीजें हो गई, वो हिंदू लॉज गवर्न करते थे, और जो मुस्लिम्स थे उनको मोहम्मदन लॉज करते थे। अब मोहम्मदन लॉज में शरिया और ये सब आता है, ये आप जानते ही हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इस तरीके से दोनों पर्टिकुलर ये जो समाज थे, मेन जो धर्म के लोग उस रीजन में रहते थे, उनके जो सिविल केसेस थे वो रिस्पेक्टिवली हिंदू लॉज और रिस्पेक्टिवली मुस्लिम लॉज के अंतर्गत उनका जो जस्टिस था, जो भी उनका जजमेंट था, वो दिया जाता था। ओके, नाउ 500 रुपए के, और उसके अलावा क्या किया था कि कुछ चीजें डिसाइड कर दी गई थी, कुछ पैरामीटर्स जो थे वो सेट कर दिए गए थे कि जैसे 500 रुपए तक का अगर कोई भी सिविल केस होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत में ट्राई किया जाएगा 500 रुपए तक ही। 500 रुपए के ऊपर अगर हुआ तो उसको सदर दीवानी अदालत जाना पड़ेगा। सदर दीवानी अदालत वॉज इन कलकत्ता इटसेल्फ। ओके, तो ये इसके 500 रुपए के ऊपर एक केसेस जो है ये भी सदर दीवानी अदालत में होते थे। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत के किसी पर्टिकुलर केस में कोई एक पर्टिकुलर जो एपिलेंट है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जस्टिस व्हिच वाज डन, और विद द वर्डिक्ट व्हिच वाज गिवन, जो भी उस चीज का वर्डिक्ट दिया गया उस केस का, उससे दे आर नॉट ओके एंड दे वांट टू अपील फर्दर, तो वो जो अपील जो था वो सदर दीवानी अदालत में ही होता था। अब सदर दीवानी अदालत का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन समझे तो सदर दीवानी अदालत जो था वो प्रेसिडेंट, जो काउंसिल था, मतलब जो कलकत्ता में कंपनी का जो काउंसिल था उसका जो प्रेसिडेंट थे, उसके अलावा 2 ऑफिसर्स, ये उस पर्टिकुलर काउंसिल जो सदर दीवानी अदालत को हेड करते थे। और साथ ही साथ इनको असिस्टेंस मिलता था बाय इंडियन ऑफिसर्स, जो कंपनी के जो इंडियन ऑफिसर्स थे। क्योंकि देखो आप ये भी समझिए कि कहीं ना कहीं हिंदू लॉ, मुस्लिम मोहम्मदन लॉ, जो कि मैं पहले ही बता रहा हूं, इसकी समझ जो थी वो अंग्रेजों को उतनी थी नहीं, और कहीं ना कहीं सारे ऑफिसर जो थे वो इंटरेस्टेड थे भी नहीं। बिकॉज उस टाइम मैं अभी भी बता रहा हूं कि ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं चल रहा था। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान ये कैसे बन गया, ये बनते बनते बना। और ट्रेड करना जो था वो प्राइमरी टारगेट, प्राइम प्रायोरिटी थी अंग्रेजों की। जब ट्रेड में इश्यूज आने लग गए तो उन्होंने क्यों नहीं हम इस रीजन के ऊपर रूल ही करने लग जाएं, ऐसे आइडियाज उनके दिमाग में आने लग गए। तो जो ऑफिसर्स भी आते थे उनको उतनी समझ नहीं होती थी भारतीय रीति रिवाजों की, तो इसलिए इंडियन ऑफिसर्स का, कंपनी के इंडियन ऑफिसर्स का असिस्टेंस लिया जाता था इन सदर दीवानी अदालत। ओके, नाउ ये तो हो गया सदर दीवानी अदालत का। दूसरा था डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत का काम था सिविल केसेस को ट्राई करना। ओके, और इसका जो प्रेसिडेंट होता था, कहने का मतलब इस पर्टिकुलर कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट का जो प्रेसिडेंट होता था, जो सब कुछ करने का जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, दैट वाज बेसिकली इंडियन ऑफिसर्स। जैसे कि मैंने पिछले केस में आपको बताया कि कंपनी के इंडियन ऑफिसर्स भी होते थे, तो ये वो प्रेसिडेंट जो थे वो इंडियन ऑफिसर्स हुआ करते थे, जिनका की असिस्टेंस जो था वो काजी और मुफ्ती किया करते थे। ठीक है ना, काजी और मुफ्ती के असिस्टेंट से इंडियन ऑफिसर्स जो थे वो प्रिसाइड करते थे डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को, जहां पे क्रिमिनल केसेस, जैसे किसी ने किसी का अंग भंग कर दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को धमकी दी जान से मारने की, ठीक है, तो ये सब केसेस जो थे ये आते हैं अंडर क्रिमिनल केसेस। और इसके लिए इंडियन ऑफिसर एक प्रिसाइड करता था डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को, और काजी और मुफ्ती से असिस्टेंस लेता था। कलेक्टर्स जो थे वो भी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर इन्वॉल्व थे। किस तरीके से
कि उन्हें कुछ कंट्रोल दिया गया था सुपरविजन का। होता क्या था कि बेसिकली मोहम्मदन लॉ फॉलो होता था इन, जो कि अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि मोहम्मदन लॉ फॉलो होता था इन क्रिमिनल केसेस, इन फौजदारी केसेस। तो कई बार क्या होता था कि जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियंस थे, वो इस सिस्टम को कभी कभी फेयर नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि बस जो भी रिलीजियस बुक है उसके हाजिर नाजिर होते हुए, कहने का मतलब जस्ट on the basis of the statement of a particular person, you should not be able to decide what he did and what he was planning to do. एक इंसान अगर ये बोल दे कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर रखे, या फिर मुस्लिम के केस में जो भी उनके ईष्ट देव हैं, उनको उनका नाम लेते हुए जस्ट वो अगर स्टेटमेंट देते हैं, तो केवल इससे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ एविडेंसेस भी होने चाहिए। तो इन एविडेंसेस को इंश्योर करने के लिए, और जस्टिस जो है वो गलत तरीके से नहीं किया गया है और प्रॉपर जस्टिस मिल रहा है वहां के रीजन के लोगों को, तो इसकी निगरानी के लिए कलेक्टर को भी फौजदारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया गया था। ओके, नाउ ये जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत था, ये डेथ किसी को अवॉर्ड नहीं कर सकता था, वो किसी को मौत की सजा नहीं दे सकता था, ये उसके एम्बिट में नहीं था, वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं था। और साथ ही साथ किसी की भी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने का भी पावर जो था वो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत के पास नहीं था। ओके, ये दोनों चीजें जो थी वो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत के पास नहीं थी। अपील के लिए सदर निजामत अदालत, जो कि डिप्टी नाजिम के अंडर में था, वो किया जाता था। अब ये यहां पे देख लीजिए कि जैसे आपने पहले देखा दीवानी राइट के केस में, जो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत है, अगर उसमें अपील करना हो तो सदर दीवानी अदालत में आप जाओगे अपील करने के लिए। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत में किसी पर्टिकुलर जजमेंट से अगर एक अपेलेंट जो है इज नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर वो सदर निजामत अदालत में हो सकता है। और सदर निजामत अदालत का जो प्रेसिडेंस है, कहने का मतलब जो उसको हेड कर रहा है, वो डेप्यूटी नाजिम हुआ करता था। जैसा कि आप जानते ही हैं, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर ही जो डेप्यूटी निजाम जो था वो मोहम्मद रजा खान को ही बना दिया गया था, जो कि डेप्यूटी दीवान भी थे बंगाल के। ठीक है, तो ये डेप्यूटी नाजिम जो है ये काम करता था। और ये जो डेप्यूटी नाजिम हुआ करता था, हु यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर द सदर निजामत अदालत, ही वाज टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम चीफ काजी एंड चीफ मुफ्ती। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि मुगल टाइम से ही ये रेफरेंस लिया गया है, ग्रेटर मुगल्स के टाइम पे किस तरीके से मोहम्मदन लॉ जो है उसको यूज करते हुए। तो मोहम्मदन लॉ के अंतर्गत जो भी क्रिमिनल केसेस थे, वो चीफ मुफ्ती और चीफ नाजी जो थे वही उसको हेड करते थे। तो यहां पर जो डेप्यूटी नाजिम है उसका काम कर दिया गया प्रिसाइड करने का, और वो कहीं ना कहीं पुराने सिस्टम के तरीके से ही चीफ काजी और चीफ मुफ्ती से हेल्प लिया करते थे कि इस पर्टिकुलर केस में क्या करना चाहिए। ओके, नाउ इसी टाइम पर एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ विच वाज बेसिकली कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया इन कलकत्ता। ओके, अभी जो सुप्रीम कोर्ट था, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के कारण बहुत सारे इश्यूज खड़े हो गए। देखिए, पहले तो क्या हुआ, इनिशियली सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करने के पीछे रीजन ये था कि कलकत्ता में जो कंपनी के लोग हैं, खासकर जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके जो भी केसेस हैं वो they didn't want them to be tried using Indian laws. Okay, चाहे वो मोहम्मदन लॉज हो, चाहे वो हिंदू लॉज हो, they didn't want Englishmen to be subjected to these laws. So, in order to subject them to European laws itself, they established Supreme Court. Okay, in Calcutta itself, जिसके कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो इम्पे बने थे। ठीक है ना, तो उन्होंने वहां एस्टैब्लिश कर दिया। अब इनिशियली जब इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया, तो उसका जो पर्पस था वो कहीं ना कहीं इंडियन लॉज के साथ और इंडियन जो लोग हैं उनके साथ छेड़खानी करने का नहीं था। वो केवल ब्रिटिशर्स को ट्राई करने के लिए, या फिर जो ब्रिटिश पोजेशंस हैं जो कलकत्ता में हैं, या कलकत्ता के आसपास जो भी इंग्लिश मर्चेंट्स हैं, उनके जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहां पर अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो इनको हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। लेकिन हुआ क्या, साथ ही साथ उन्होंने ये क्लॉज भी रख दिया कि सपोज करो कहीं दो इंडियंस हैं एंड दे want their particular case to be heard in the Supreme Court of Calcutta, then the both party should be okay with it. कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट by the area of their jurisdiction, जस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं थी इंडियंस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को ट्राई करने की। लेकिन अगर दो इंडियंस अगर ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हो उसका, और सुप्रीम कोर्ट में जो लॉज है उसके अंतर्गत हमें जो है वो जस्टिस मिले, तो वो जा सकते थे।
अब यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो यूरोपियन या फिर इंग्लिश लॉज के अंतर्गत चलता था, जिन्हें एंग्लो सेक्शन लॉ भी बोलते हैं। जैसे आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे जो हमारी कंट्री के जो लॉज हैं वो एंग्लो सेक्शन लॉज ही हैं। कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत वहां पर इनपुट रखा गया है ऑफ द मोहम्मदन लॉज एंड द हिंदू लॉज इन सिविल केसेस, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस है उसमें अभी भी हम लोग जो है वो मोहम्मदन लॉज नहीं बल्कि द यूरोपियन लॉज, द एंग्लो सैक्सन लॉज जो है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट आया था ये इन लॉज के अंतर्गत ही काम करने के लिए लाया गया था। इसका कोई लेना देना नहीं था इंडियन लॉज से। रेफरेंस ले सकते थे लेकिन मेजरली ना वो इंटरेस्टेड थे और ना वो करना, ना ही उन्होंने किया ही। अब यहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था क्रिमिनल लॉ सिविल केसेस का, क्रिमिनल केसेस सिविल केसेस का, जो कि दीवानी और फौजदारी केसेस में होता है। तो हो यह गया कि सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिडिक्शन होने लग गया। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि जो भी यूरोपियन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो भी इंग्लिश एस्टैब्लिशमेंट, अंग्रेजों की जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में हैंडल होंगे। और वहीं वहीं सदर निजामत और सदर दीवानी अदालत जो है उसके अंदर इंडियंस के ट्रायल होंगे। अब इंडियंस तो काम तो अंग्रेजों के अंडर में ही कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लग गया अमंग सुप्रीम कोर्ट एंड द सदर दीवानी अदालत, रेवेन्यू केसेस में भी और निजामत इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वॉरेन हेस्टिंग्स डिड इज दैट कि जो इम्पे हु वाज द चीफ जस्टिस, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, उनको सुपरविजन का काम दे दिया ऑफ सदर दीवानी अदालत ऑल्सो 5,000 रुपए के पेमेंट के ऊपर। लेकिन कंपनी ने इस चीज को बहुत ही जल्दी खारिज कर दिया बिकॉज इसके फेवर में कंपनी नहीं थी कि एक ही इंसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी हेड करे और साथ ही साथ सदर दीवानी अदालत को भी हेड करे। तो चूंकि इम्पे को लगाने के बाद दोबारा से हटा दिया गया तो वापस से एक डुअलिटी खड़ी हो गई कि कहीं ना कहीं जस्टिस देने के लिए दो पार्टीज, दो अलग एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सेम एरिया ऑफ जुरिडिक्शन रखने लग गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता भी और सदर दीवानी अदालत भी, ये दोनों के एरियाज ऑफ जुरिडिक्शन सेम होने लग गए। तो कॉन्फ्लिक्ट कई केसेस में आने लग गए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लीजिए कि कुछ एफर्ट्स किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने टेन्योर के बीच में, जिसमें कि हिंदू लॉज को समझने के लिए जो संस्कृत वर्जन था हिंदू लॉज का, उनका ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है, और इसको कोड ऑफ जेंटू लॉज कहते हैं। 1776 में इसको क्रिएट किया गया था। इसकी बेसिकली ट्रांसलेशन था फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश ऑफ द वेरियस हिंदू लॉज। ओके, नेक्स्ट डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज 1791 में कोलब्रुक और वॉरेन हेस्टिंग्स हिमसेल्फ, इन दोनों ने मिलकर एक डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज बनाया था। ठीक है ना, इसके अलावा फतवा आलमगिरी जो कि मोहम्मदन लॉज जिसके अंतर्गत लिखे हुए थे, उसके भी ट्रांसलेशन की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसके अंदर ये फीलिंग जरूर है कि कहीं ना कहीं जो ओरिएंटल स्टडीज है, ओरिएंटल लिटरेचर है, ओरिएंटल वेज है ऑफ जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, इसको जानने की उसके अंदर कहीं ना कहीं ललक थी। ये एक अच्छा फेस दिखाता है वॉरेन हेस्टिंग्स। हम आगे चल के ये भी जानेंगे किस तरीके से गीता और अलग बाकी लिटरेचर्स का या फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने डिस्पाइट ऑफ द वेरियस रॉन्ग एक्टिविटीज व्हिच ही डिड इन इंडिया, he also did some very good work in the form of literature, art and culture. Okay, now coming to commercial reforms. Now what were the commercial reforms which Warren Hastings did? The first one was, उसने जो जमींदारीज में जो बहुत सारी जमींदारी थी in the Bengal, Bihar and Orissa province, in that custom houses बने हुए थे। अब custom houses क्या थे? जहां पर की कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पर की कस्टम कितना लगना चाहिए, एक पर्टिकुलर इनलैंड ट्रेड पे किस तरह की कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, इसके बारे में डिसीजन लिया जाता था। तो इनकी मशरूमिंग हो गई थी। जैसे मैं आपको बता ही रहा हूं कि किस तरीके से जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो इंटरनल ट्रेड में दस्तक का मिसयूज करते थे। तो उसी मिसयूज के अंतर्गत इन सारे इंग्लिश कंपनी सर्वेंट्स and other people have mushroomed the number of the custom houses। इतनी बहुत सारी जगहों पे कस्टम हाउसेस बना दिए थे ताकि वो इंटरनल ट्रेड पे कस्टम लगा पाए और अपने प्राइवेट इंटरेस्ट में
उस पर्टिकुलर ट्रेड को टैक्स कर पाए। ठीक है, तो इसको एबॉलिश कर दिया सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और केवल 6 कस्टम हाउसेस डिक्लेयर कर दिए, सॉरी ओनली 5 कस्टम हाउसेस वर फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कस्टम हाउसेस। ओके, द नेक्स्ट वन वाज ड्यूटीज वर लोवर्ड। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि किस तरीके से फारूक सीआर के दस्तक का मिसयूज करते हुए जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो प्राइवेट ट्रेड करते थे और वो दस्तक को आगे बेचते भी थे, और इस ड्यूटी फ्री के अंतर्गत वो इंटरनल ट्रेड पे कोई ड्यूटी पे नहीं करते थे, एंड दे लिटरली मोनोपोलाइज द इंटरनल ट्रेड इन द रीजन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो इसको चेंज करते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 2.5% इंटरनल ट्रेड पे टैक्स लगा दिया, और उसने इंश्योर किया कि ये जो 2.5% का टैक्स है ये सब लोगों पे लगे, ना ही केवल इंडियन मर्चेंट्स पे बट ऑल्सो इंग्लिश मर्चेंट्स, अदर यूरोपियन मर्चेंट्स, सब पे 2.5% का एक टैक्स लगा दिया। ये एक रिफॉर्म है। इसके अलावा दस्तक का जो मिसयूज था उसको चेक किया। कहने का मतलब दस्तक जो है वो गलत तरीके से यूज ना हो, उसको लोग आपस में बेचे खरीदे नहीं, और केवल कंपनी इंश्योर करे कि किसको दस्तक मिलना चाहिए और किसको दस्तक नहीं मिलना चाहिए, और कंपनी के जो अपने ट्रेड, इंटरनल ट्रेड की जो भी एक्टिविटीज है केवल वो ड्यूटी फ्री रहे, ना कि प्राइवेट ट्रेड उसके सर्वेंट्स का। ठीक है, तो ये चीज की गई। उसके अलावा जो वीवर्स जो थे, ठीक है ना, जैसे मैं आपको पिछले क्लास में बताया कि रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे कहीं ना कहीं जो यूरोपियन जो इंग्लिश इंडस्ट्रीज थी उन लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव को, या कंपनी ने भी रॉबर्ट क्लाइव को ये बात बोली कि भाई सीधी सी बात है, यहां पर यू मेक श्योर दैट इंडियंस जो है वो फिनिश प्रोडक्ट ना बनाए, वो रॉ मटेरियल बनाए। रॉ मटेरियल या तो इंग्लिश फैक्ट्रीज में प्रोसेस्ड गुड बने, कहने का मतलब फैब्रिक बने सिल्क का, या तो फिर वो इंग्लैंड भेजा जाए और वहां से फिनिश प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बेचा जाए। तो इस कारण से जो बुनकार थे, जो वीवर्स थे, उनका जो काम था, उनका पेट्रनेज खत्म हो गया, उनको अपने काम के इंसेंटिव मिलने खत्म हो गए, तो वो काफी एक्सप्लॉइट थे। गोमस्ताज उनको अपने लिस्ट में एनलिस्ट कर लेते थे, दे यूज्ड टू एनलिस्ट देम इन देयर ओन रोल, एंड दे यूज्ड टू मेक श्योर दैट दीज वीवर्स डोंट गेट वर्क समवेयर एल्स, और इसमें कहीं ना कहीं स्लेव ट्रेड भी स्टार्ट हो गया था। तो इस सब के कारण जो वीवर्स था उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ही पैथेटिक हो चुकी थी। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ स्टेप लिए। इसके अलावा ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश किए विद भूटान एंड तिब्बत। ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ की ट्रेड रिलेशंस भी एस्टैब्लिश किए, ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश किए वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू एक्सटर्नल रिलेशंस अंडर हेस्टिंग्स, देखिए एक्सटर्नल रिलेशन जानने से पहले एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, आप इसको कहानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कुछ पर्टिकुलर चीजें हुई इन द इंग्लिश एस्टैब्लिशमेंट, द कंपनीज एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। व्हाट द रेगुलेटिंग एक्ट सेड इज दैट कि सबसे पहले तो गवर्नर जो बंगाल का है वो गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं उसके अंडर जो बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया, दे हैड टू गिव देयर रिपोर्ट्स टू द काउंसिल विच इज देयर इन द बंगाल। साथ ही साथ काउंसिल बनने की भी बात की, और काउंसिल के अंदर 4 मेंबर्स के बारे में बात की इन रेगुलेटिंग एक्ट ने। ये 4 मेंबर जो है ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह के एग्जीक्यूटिव स्टेप्स और किस तरह के लॉज और लेजिस्लेचर्स जो है उन पर्टिकुलर एरियाज में बनने चाहिए। तो इस काउंसिल के जो 4 लोग बनेंगे वो मेजोरिटी पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा लॉ बनना चाहिए और किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए, या किस तरीके से बाकी स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर आपको एनेक्स भी करना है, किसी पर्टिकुलर एरिया को आपको अपने अंडर में भी लेना है, तो इसका डिसीजन भी काउंसिल ही करेगी। वहां पे गवर्नर जनरल का बस रोल इतना रहेगा कि इन केस ऑफ ए टाई वो उसके पास कास्टिंग वोट रहेगा। ठीक है ना, जैसे कि हमारे यहाँ आप जानते ही हैं कि जो हमारा लोकसभा है उसमें अगर वोटिंग होती है, कहने का मतलब उसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आती है अपोजिशन, और फिर अगर वोटिंग हो रही है तो उसमें अगर टाई हो जाता है तो स्पीकर के पास एक कास्टिंग वोट रहता है, बट पहले से वोट जो स्पीकर वो नहीं दे सकता है, इवन इफ वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करे ना करे। तो इस कारण से ही गवर्नर जनरल के पास एक कास्टिंग वोट था। अब यहां पे जो 4 ये जो काउंसिल मेंबर्स डिसाइड हुए, इनके नाम भी रेगुलेटिंग एक्ट में लिखे हुए थे। यहां से बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था विद इन द कंपनी इटसेल्फ। ओके, इस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ये था कि एक जो काउंसिल मेंबर थे वो तो ऑलरेडी इंडिया में ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे एज एन ऑफिसर।
लेकिन जो बाकी 3 थे वो यूरोप से आ रहे थे। अब जब जो लोग यूरोप से आ रहे थे, जैसा आप जान ही रहे हैं कि इंडिया में काम करना कितना ल्यूक्रेटिव था उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में जो भी गवर्नर अपॉइंट होता था उसको लेकर काफी सारे जो इंग्लैंड में लोग बैठे हुए थे, एरिस्टोक्रेट्स बैठे हुए थे, उनमें जेलिसी की भावना आती थी। और साथ ही साथ वो ये भी जान रहे होते थे कि भाई बहुत सारे ब्राइब भी ले रहे हैं। उनके ये जो ओपिनियन था कि इंडिया में जो भी गवर्नर आता है वो एक्सप्लॉयटेटिव होता है, और वो इंग्लैंड मतलब इंग्लिश लोगों के, कहने का मतलब अंग्रेजों के इंटरेस्ट के फेवर में काम ना करते हुए अपने फेवर में काम कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी था कि कहीं पे जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये डिफिकल्टी ना समझते हुए जो 3 काउंसिल मेंबर्स जो इंग्लैंड से आए, दे बिकेम वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स वॉरेन हेस्टिंग्स। उनमें से कुछ लोगों के तो एस्पिरेशंस भी थे कि वो अगले गवर्नर जनरल खुद बने, और उन्होंने आते ही वॉरेन हेस्टिंग्स से बहुत तरीके के सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स से जो उन्होंने बनारस में जो अलायंस किया, बनारस में जो ट्रीटी साइन की, या फिर आगे चल के आई बी टेलिंग यू व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, कि जैसे रोहिल्लास के केस में जो इंग्लिश कंपनी ने इन्वॉल्वमेंट किया, जो रेवेन्यू लॉसेस हुए, इन सब चीजों पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स को, और काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए विद इन द काउंसिल, जिसके कारण कि जो टर्म्स थे ऑफ द काउंसिल एंड द गवर्नर जनरल, दे केप्ट ऑन चेंजिंग लाइक अ सी सॉ। कभी वो अच्छे होते थे, कभी वो खराब होते थे। और इसका रिपरकशन अब आगे चल के जब मैं एक्सटर्नल जो भी एंटिटीज है उससे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे इंग्लिश कंपनी के क्या रिलेशंस थे, जब भी हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे विल सी दैट कि किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण आगे चल के इंग्लिश कंपनी जो थी वो शेप अप की इन द इंडिया एंड द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एंड ऑल दीज रीजन्स। तो हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से एक्सटर्नल रिलेशन जो थे वो अंडर हेस्टिंग्स डिसाइड हुए। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लाइव जो है आफ्टर 1764 बैटल ऑफ बक्सर, जब 2 एग्रीमेंट्स किए थे क्लाइव ने, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे अलायंसेस बनाए थे। कहने का मतलब डिस्पाइट ऑफ बीइंग विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ बक्सर, उन्होंने सुजाउद्दौला जो अवध के जो नवाब थे उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। साथ ही साथ जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पे शाह आलम II, उनको इलाहाबाद एंड कोरा दे दिया था, ताकि वो कहीं ना कहीं मुगल एम्परर को ये लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे थे कि भाई आप अभी भी जो है वो इंडियन कॉन्टिनेंट के और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के, नॉर्दर्न एरियाज के, इसके आप सॉवरेन हो, ठीक है, ये दे दिया था। उसके अलावा ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें जो थी ये अब उस तरीके से नहीं रही थी जितनी की पहले थी। उस टाइप कहीं ना कहीं जो भी आपका नवाब अवध की जो जरूरतें थी वो अलग थी, लेकिन अब वो बदलती जा रही थी दिन ब दिन, ठीक है। इसके अलावा मराठास जो कि एक थ्रेट थे, मराठास जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, मराठास के कारण ही रॉबर्ट क्लाइव ने बफर स्टेट की नीति अपनाई थी अवध को लेकर, कि हम अगर अवध को एनेक्स नहीं करेंगे, अवध को अपने अंडर में नहीं लेंगे, जैसे बंगाल को ले रहे हैं ऑलमोस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो अगर हम अवध को नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं बफर स्टेट रहेगा और मराठास से हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। मराठास वर अ वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मराठास पानीपत में 1761 में हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी दे रिकवर्ड आफ्टर इट एंड दे अगेन रिक्लेम्ड देमसेल्फ एज अ वेरी फॉर्मिडेबल पावर इन इंडिया। तो ये कुछ उस वक्त की रियलिटीज थी जो आप लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हैदर अली डाउन साउथ मैसूर में, हम इसके बारे में आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये जानिए कि हैदर अली जो था वो भी नीचे काफी एज एन एग्रेसिव फोर्स निकल के बाहर आ रहा था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा यूरोपियन फोर्सेस भी जो अमेरिका, मतलब कहने का मतलब साउथ एंड नॉर्थ अमेरिकाज, वहां पे भी ब्रिटिशर्स ने और बाकी यूरोपियन फोर्सेस ने वहां पे कॉलोनीज स्टैब्लिश की थी। जैसे कि इंडिया एक कॉलोनी था, वैसे ही अमेरिकाज में, कहने का मतलब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी यूरोपियन पावर की कंपनीज थी, ओके, तो कॉलोनीज थी। तो ये कॉलोनीज में भी कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया था, और जो यूरोपियन पावर्स थे अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड, वो आपस में पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को कैसे हम अमेरिकन कॉलोनी से बाहर भगाएं, इसके बारे में प्लाटिंग करने लग गए थे। तो ये जो पूरा सिचुएशन था उस टाइम पे, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन था उस टाइम पे, उसके अंतर्गत किस तरह के रिलेशंस रहे वॉरेन हेस्टिंग्स के ऑन द नेम ऑफ कंपनी विद द अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो पहला तो हो गया रिलेशन विद एम्परर ऑफ शाह आलम II। अब शाह आलम II के साथ जो रिलेशन था, जो अभी तक जो रिलेशन था वो ये था कि इलाहाबाद और कोरा जो है वो
आफ्टर 1765 ट्रीटी कंपनी ने जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने कंपनी ने वो मुगल एम्पायर को दे दिया था कि आप इलाहाबाद में बैठो और इलाहाबाद और कोरा के ऊपर आप हेड करो, ठीक है। ये अभी तक हो रहा था, लेकिन मराठास ने 1771 में व्हाट दे डिड इज दैट उन्होंने दिल्ली कैप्चर कर लिया। ओके, अब 1771 में जब दिल्ली कैप्चर कर दिया तो आप ये जान ही रहे हैं, मैं आपको बता ही रहा हूं कि अफगान थ्रेट के कारण, आफ्टर अफगान थ्रेट, ड्यू टू अफगान थ्रेट, शाह आलम जो थे वो दिल्ली में बैठते ही नहीं थे। कहने का मतलब एक राजा है जो अपने कैपिटल में ही नहीं बैठता है, ठीक है। ये सिचुएशन थी मुगल एम्परर्स की उस टाइम पर। तो जब मराठास ने अफगान जब चले गए वहां से इंडिया चले गए 1761 में, आफ्टर बैटल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1767 तक अफगान जो थे वो दिल्ली पर ऑलमोस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रूल कर रहे थे। और उसके बाद उनके जाने के बाद मराठास ने 1771 में दिल्ली को पे जीत हासिल की और शाह आलम टू को वहां पे बिठा दिया। अब देखिए, आप यहां पे देखिए, शाह आलम टू जो मुगल एम्परर है उसके हमेशा प्रोटेक्टर्स निकल के आ रहे हैं। पहले उसका एक प्रोटेक्टर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव था जिसने इलाहाबाद कोरा जैसी जगह दी। उसके बाद अब मराठास बन गए जो अंडर महादाजी सिंधिया। आप जैसे मराठास के बारे में जानेंगे, मीडिएवल का ये टॉपिक है कि मराठास जो थे वो वेरियस कॉन्फेडरेसी में बटे हुए थे। वह उन्हीं में से एक कॉन्फेडरेसी जो थी वो ग्वालियर की सिंधिया कॉन्फेडरेसी थी, और जो सिंधिया कॉन्फेडरेसी थी उसके हेड महादाजी सिंधिया करते थे। तो महादाजी सिंधिया जो थे उन्होंने शाह आलम टू को दिल्ली की थ्रोन पे दोबारा से बिठाया। ओके, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में चले गए। अब इसके एवज में, इसके बदले में शाह आलम टू ने क्या किया, इलाहाबाद और कोरा मराठास को दे दिया। अब यहां पे आप ये देखेंगे कि इलाहाबाद और कोरा जो मराठास को दे दिया, वो पहली बात तो मुगल एम्परर ने कोई जीत के तो लिया नहीं था, वो तो ब्रिटिशर्स ने दिया था उनको। तो इस बात से कहीं ना कहीं जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ही बिकेम वेरी फ्यूरियस। और अभी तक ये जो एक कह रहे हैं ना कि ये एक कटसी में, ठीक है ना, या फिर शिवेलरी में जो कुछ चीजें चल रही थी बिटवीन द मुगल एम्परर एंड द कंपनी एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो मास्क है वो उतर गई, जो फर्स्ट स्लाइड में बताया था मैंने। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये अनाउंस किया कि भाई ये जो पूरा प्रोविंस है यहां से लेके या फिर बंगाल की दीवानी है, ये हमें मुगल एम्परर ने कोई दान में नहीं दी है, ये हमने जीती थी, वो तो हम आपको इज्जत दे रहे थे। और इसी के साथ ट्रीटी ऑफ बनारस करते हुए नवाब अवध के साथ इलाहाबाद और कोरा जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है ना। तो ये इलाहाबाद और कोरा को लेके जो कंट्रोवर्सी रही, इसने कहीं ना कहीं जो मुगल एम्परर है वो और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हुए या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद हुई, इनके बीच के रिलेशंस को डिफाइन किया। ओके, इसके अलावा अवध के साथ भी रिलेशंस जो थे वो थोड़े से देयर वाज चेंज, और जो टर्म्स थे वो कहीं ना कहीं चेंज होते जा रहे थे। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे क्या हुआ था कि आफ्टर द ट्रीटी इन 1765, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद between शुजाउद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, इट वाज डिसाइडेड कि जो ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस हुआ था, कहने का मतलब कि अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी थ्रेट होता है किसी भी पर्टिकुलर फोर्स से, चाहे वो यूरोपियन फोर्सेस हो चाहे वो इंडियन फोर्सेस हो, तो जो नवाब अवध है वो उनकी हेल्प करेंगे, एंड वाइस वर्सा अगर नवाब अवध को होगा तो भी। और लेकिन इसके एवज में नवाब ऑफ अवध जो था उसने काफी सारे फायदे उठाए, काफी सारे हेल्प ली फ्रॉम द कंपनी, लेकिन कंपनी को ड्यूली पे नहीं किया। इस कारण से कंपनी को काफी ज्यादा रेवेन्यू का लॉस होने लग गया। इस रेवेन्यू ऑफ लॉस को ही रिकवर करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो अपने टर्म्स थे विद द नवाब ऑफ अवध उसको चेंज किया। ओके, इसके पीछे एक रीजन और भी था कि मराठा थ्रेट था रोहिलखंड में। रोहिलखंड का जो एरिया है, गंगा यमुना डोआब के बीच का रीजन है, उसका जो कैपिटल है वो बरेली, जो प्रेजेंट टाइम बरेली है वो है। तो वहां पे रोहिल्ला पठान जो है उनका इन्फ्लुएंस था, और ये जो रोहिल्ला पठान थे कहीं ना कहीं इनको लेकर जो नवाब अवध था वो काफी स्केप्टिकल था, उसको भरोसा नहीं था उनपे, और कहीं ना कहीं ये भी डर था कि जो मराठास काफी स्ट्रांग हो गए हैं नॉर्दर्न इंडिया में, they'll conquer over this रोहिलखंड एरिया विच इज वेरी रिसोर्स रिच, वहां से काफी अच्छा रेवेन्यू आता है। तो इन सब चीजों के कारण नवाब अवध जो था उसे थ्रेट था, और इस थ्रेट के अंतर्गत ही ट्रीटी ऑफ बनारस जो है उसके अंडर दोबारा ये बात, ट्रीटी ऑफ बनारस के अंदर जब नवाब अवध ने इलाहाबाद और कोरा जो है वो ब्रिटिशर्स से खरीद लिया, ठीक है, इसके बाद ये डिसाइड हुआ
कि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी आपस में, या फिर मराठास ने अटैक किया किसी भी रीजन को, तो कहीं ना कहीं दोनों, कहने का मतलब नवाब अवध और कंपनी जो है वो एक साथ मराठास के अगेंस्ट लड़ेगी। साथ ही एक सीक्रेट ट्रीटी भी हुई। सीक्रेट ट्रीटी ये हुई कि अगर नवाब अवध रोहिल्लास पे अटैक करते हैं, ठीक है, रोहिलखंड के एरिया पे अटैक करते हैं, तो 40 लाख रुपए के एवज में जो कंपनी है वो नवाब अवध की भी हेल्प करेगी। तो ये कुछ सीक्रेट अलायंस भी हुआ और मराठास के अगेंस्ट में ओपन अलायंस भी हुआ। ओके, तो इस तरीके से रिलेशंस विद अवध वर डिफाइंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, we'll be taking up the next important and the other particular chapters or the particular portion of this particular topic in the next class. Okay, thank you friends.